হাই গাইস, আমি সুমন আর পডকাস্ট ওয়ালা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সবার প্রথমেই হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। 2025 পড়ে গেছে আর নতুন বছরের শুরুই সবসময় নতুন জিনিস দিয়ে হওয়া উচিত। আজকে সেই জিনিস নিয়েই আমরা শুরু করব। আজকে থেকে আমাদের কন্টিনিউ 4-5টা ভিডিও আসবে ইনফ্লুয়েন্সারদের ওপর। 2025-এ আমরা ইনফ্লুয়েন্সার সিরিজ নামে একটা সিরিজ শুরু করছি, যেখানে আমরা 4-5টা ভিডিও দিয়ে শুরু করব। সেখানে নামি দামি সব ইউটিউবাররা বা ইনফ্লুয়েন্সাররা আসবে এবং আমাদের সাথে অনেক কথোপকথন বা আলোচনা হবে, তাদের লাইফ স্টোরি জানবো, তাদের অনেক কিছু আমাদের জানার আছে। আশা করি এই সিরিজটা তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমরা খুব এনজয় করবে। তো আজকে সেই সিরিজেরই প্রথম পডকাস্ট আজকে আমরা করতে চলেছি, আর আজকে আমাদের এই পডকাস্টের গেস্ট হিসাবে ডেকে নিয়েছি গৌতম সাউকে। তাকে তোমরা অনেকেই চেনো, অনেকেই জানো, আর আশা করি আজকের এই পডকাস্টটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। পুরো ভিডিওটা দেখো এবং এনজয় করো। হ্যাপি নিউ ইয়ার গৌতম। হ্যাপি নিউ ইয়ার। কেমন আছো? ভালো, তুমি কেমন আছো? এই চলে যাচ্ছে 2025। আজকের থেকে আমরা নতুন একটা সিরিজ শুরু করছি ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে, তারই আজকের প্রথম পডকাস্ট তোমাকে নিয়ে। ওয়াও, নাইস। তো কিভাবে তোমার পথ চলা শুরু, সবার আগে এইটা দিয়ে শুরু করি আমরা। বেশি তো বাংলা পারি না আমি, ঠিক Okay, আছে? okay. আমি বাংলা বলবো, হিন্দি বলবো, দুটোই বলবো। ওকে, কোনো চাপ নেই, তুমি রিল্যাক্সে বলো। তাহলে বলো, জিজ্ঞেস করো। তো আগে কি ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে বেশি শুরু করেছিলে নাকি মেকআপ আর্টিস্ট? মেকআপ আর্টিস্ট। মেকআপ আর্টিস্ট অ্যাজ এ মেকআপ ইনফ্লুয়েন্সার, তাই? হ্যাঁ, মেকআপ। ওকে, মেকআপের উপর কিভাবে রুচি আসলো তোমার? মেকআপ আমি ভালো করি, সবাই বলে কি ভালো করে তুমি ভালো মেকআপ আর্টিস্ট আছো, ভালো মেকআপ করো, তো তাহলে মেকআপই লাইন ধরো, ভালোই থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে মেকআপই করছি। এটা কবে থেকে? হয়ে গেছে 2018 দিকে। 2018 থেকে। ওকে, তারপরে মেকআপ আস্তে আস্তে মানে কোথাও শেখা নাকি? তারপরে না, নিজে দিয়ে গড গিফটেড আছে আমার। তুই নিজেই মেকআপ ইউটিউবে টিউটোরিয়াল দেখে শুরু কিছু না, তাহলে নিজে দিয়ে গড গিফটেড। ওকে, তারপরে কিভাবে তোমার জার্নি শুরু হলো মেকআপ নিয়ে? মেকআপ জার্নি নিয়ে শুরু হয়েছে আমার 2018 থেকে, আছে না 2016। ওকে, 2016 থেকে শুরু করেছি আমি। আর নর্মালি ছিলাম, ঠিক আছে? আমি জানতাম না কি মেকআপ কি হয় কি হলো না। তা আমার দুটো দিদি আছে, টুইন্স আছে, ঠিক আছে? तो दोनों दीदी है, वो ट्विंस है। तो वो मुझे मतलब वो सीख कर आती थी कहीं पे, मेकअप ज्यादा करके सीख कर ही आती थी। वहां पे उस समय वो सीखने जाती थी, तो मैं जब भी सीख कर आती थी ना, तो मैं क्या करता था ना, उनके पास बैठ जाता था। और मेरा दिमाग इतना ही ज्यादा तेज है कि मुझे कुछ भी देखने से ना एक बार में हम सब कुछ सीख लेते हैं। ओके, तो वो जब दीदी बोली कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम बोले ठीक है फिर ऐसा ही है, तो हम बैठे रहते। तो लेकिन दीदी उस दिन मुझे गुस्सा से हटा दी कि तुम क्यों लड़की लोग के बीच में बैठे हो, अपने काम करो, जाओ फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। लेकिन फुटबॉल में भी अच्छे हैं, लेकिन फुटबॉल ज्यादा पसंद नहीं था मुझे, मेकअप और मेहंदी पसंद था। तो फिर सोचे चलो मेहंदी मेकअप ही करते हैं। तो लेकिन दीदी लोग जब गुस्सा से मुझे बहुत कुछ बोल दी, तो मुझे खराब लग गया था उस दिन। तो फिर मैं बाहर चला गया था, ठीक है? तो फिर जब बाहर चला गया था, तो दीदी लोग फिर मुझे बुला ली, क्योंकि हम रोने लगे थे। हाँ, तो घर से मैं खुद से निकल गया था, क्योंकि मुझे खुद से खराब लग रहा था। जब दीदी बोली कि एक रूम में जब लड़की लोग हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तो मैं निकल गया था। फिर भी जब रोने लगे थे बाहर, और एक्चुअली दोनों दीदी ही मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा मेहनत करती भी थी और अभी भी करती है। दोनों दीदी ही करती है, और दोनों दीदी मुझे सपोर्ट भी करती है। তখন তোমার বয়স কত ছিল? उस टाइम अभी तो 23 है, उस टाइम कितना होगा, वही 19, 18-19। 18-19 তখন हाँ। বয়স। ओके, 18-19 होगा। तो उस टाइम मतलब छोटे ही थे वो लोग के लिए, तो मैं बहुत ही छोटा है, अभी भी छोटे है। तो क्योंकि दीदी लोग का शादी हो चुका है, दोनों का ही शादी हो चुका है। ওনারা দুজনেই মেকআপ, वो लोग कजन है, कजन सिस्टर है। तो वो लोग का शादी हो चुका है। तो फिर जब दीदी बुलाई मुझे खुद से कि भाई आओ तुम बैठो, लेकिन दीदी गलत कर रही थी, कुछ गलत की। तो मैं बताया जब, तो दीदी बोली कि तुमको ये सब का नॉलेज कैसे आया? तो बोले कि ये सब का नॉलेज खुद से दिमाग में लगाया जाता है कि कैसे कैसे होता है। तो फिर जब दीदी कुछ गलत कर रही थी, मैं बताया, तो उस टाइम से दीदी बोली कि ठीक है तुम ये सब काम में मन लगता है तो करना। और आज जब करते हैं तो दीदी लोग सपोर्ट भी करती है, दीदी लोग तारीफ भी करती है कि बेकार मैं तुम्हें मना किया था, बेकार रोक टोक किया था, आज तुम बहुत आगे जा रहे हो, तो ऐसे ही जाते रहना और हम लोग का सपोर्ट है। এখনো কি ওই দিদিরা মেকআপ করে, মেকআপের কাজ? না, দীদি মেকআপ করে না।
ওকে, এখন ছেড়ে দিয়েছি। বিয়ে হয়ে গেছে তো মেকআপ করে না। ওকে, তা ওখান থেকে তোমার জার্নি শুরু হলো শুরু হয়েছে। মেকআপ নিয়ে। তারপরে হঠাৎ এখনকার দিনে নর্মাল কি হয়, যে কেউ ধরো মেকআপ করছে, সে একটা পার্লার খুলে নিল বাড়িতে, তারপরে সেখানে মেকআপের কাজ বাজ করলো বা কোনো এখনই আমি বাড়িতেই করি। ওকে, বাট তোমারটা একটুখানি আলাদা। ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ হলো, কিভাবে ওদের অত বড় বড় বিউটি খানের মতন আচ্ছা, ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে তুমি গিয়ে বিউটি খানের দিদি তো অনেক খুব ভালো, খুবই ভালো। বিউটি খানই ভালো আর বাস দাদাই ভালো, দুটোই ভালো। ওকে তো আমার টিকটকের টাইম, আমি টিকটকই করি। ওকে হ্যাঁ, টিকটক করছিলাম। তো আমার ওখানে একটা বন্ধু ছিল, জিৎ নামে বন্ধু ছিল। তো আমি ওর সাথে পড়ছে ছিল ওর সাথে, ঠিক আছে। ওকে, ও কোথায় থাকতো? ও মুর্শিদাবাদ। ওকে হ্যাঁ, তো টিকটক আমি কল করেছিলাম ওকে, কি নাম্বার ছিল আমার কাছে, ঠিক আছে, কি দাদা আমাকে আর বাস দাদা নাম্বার দরকার আছে, আমি একটু মেকআপ করতে চাই বিউটি দিদি। ওর সাথে আরবাজের পরিচয় ছিল? हाँ परिचित ছিল, ठीक है। तो मैं जब अरबाज भैया को कॉल किया था, तो अरबाज भैया फिर मुझे बात किया, तो मैं बोला कि नंबर मुझे नहीं चाहिए, पहले आप कॉन्फ्रेंस लगा दो। क्योंकि एक बड़े सेलिब्रिटी में छोटे मोटे लोग मैं कॉल करूंगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो मैं सोचा चलो पहले अरबाज भैया को कॉन्फ्रेंस लगाते। फिर बात होने लगा था। तो अरबाज भैया जब बात किया कि हाँ दादा बोलो কেমন আছো, আমি বলি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো, এর সাথে কথা হয়েছিল দাদার সাথে। তো দাদা বলেছে ঠিক আছে আমার নাম্বারটা নিয়ে নাও, আমাকে কল করো। আমি কল করেছিলাম, তো বলে কবে শুট করবে। তো আমি বলেছি ঠিক আছে আমি শুট করব, তুমি বলো কবে শুট করবে, তোমার ডেট কবে ফ্রি আছো, তুমি কবে ফ্রি আছো, তুমি তো অত বড় লোক আছো, কবে ফ্রি থাকবে তারপরে তো আমি করব। তো দাদা বলেছে ঠিক আছে আমি বলছি, 2 दिन টাইম দে আমাকে, আমি বলছি। আমি ঠিক আছে। तो फिर मैं उनको परेशान करने लगा था 2 दिन तक, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा शौक था दीदी के ऊपर मेकअप करने का। एक्साइटेड हो गए थे? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे और ड्रीम भी था, टिकटॉक के टाइम से ही ड्रीम था कि मैं ब्यूटी दी के ऊपर शूट करेंगे, ठीक है। तो फिर जब ये मौका मिला तो मैं छोड़ नहीं सका था, ठीक है। तो भैया भी बहुत अच्छे हैं, दीदी भी बहुत अच्छे हैं, दोनों मुझे सपोर्ट अभी भी करते हैं। ওকে, কি প্রথম দিনে শুটে গিয়ে কি বিউটি খানের সাথে দেখা হয়ে গেছে? हाँ हाँ, पहला शूट पे ही तो वो मेरे आए थे ना, मैं बुलाया था। প্রথম পরিচয় কেমন ছিল সামনাসামনি? बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ना कि इतने अच्छे भी है। मुझे लगा कि हाँ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, एटीट्यूड होगा, थोड़ा घमंड होगा, थोड़ा कुछ भी, लेकिन दोनों में नॉर्मल, बहुत ही अच्छे हैं और अभी भी अच्छे। ওকে, প্রথম শুটটা কোথায় ছিল? বেলঘরিয়া। ওকে, ওখানে তোমাকে যেতে হয়েছিল? আমি গিয়েছিলাম, আমি ডেকেছিলাম। ওকে, দাদাকে আর দিদিকে আমি ডেকেছিলাম। ওকে, কিন্তু এই যে মেকআপ নিয়ে যে তুমি জিনিসগুলো করছো, মেকআপের তো অনেক ধাপ থাকে, যে এইটার জন্য এইটা লাগবে, এই প্রোডাক্ট গুলোর সম্বন্ধে তোমার নলেজ, হ্যাঁ নলেজ আইডিয়া আর দিদি থেকে নিয়েছিলাম আমি। ওকে, কোন দিদি তোমার? ওই প্রথমে দিদি ছিল তো, দুটো টিনস ছিল, ওকে, ওর থেকে নিয়েছিলাম। তা প্রথম শুট তার মানে বেলগড়িয়াতে বিউটি খানের সাথে তোমার হয়েছিল। ওখানে গিয়ে স্টুডিওর কেমন ফিল ছিল, কেমন ওখানে শুট হলো তোমার? খুব দারুণ ছিল, আমি তো বুঝতে পারলাম না কি এত বড় লোক আমার কাছে এসেছে, আমি মেকআপ করছি। তো দিদি, তুমি কি তখন চার্জ করেছিলে, কোনো টাকা পয়সা নিয়েছিলে? না না, টাকা দাদা নিল না আমার থেকে, দাদা এক টাকাই নিল না। ओके, तो पहले बात हुआ था तो पैसा का बात हुआ था, तो क्योंकि बड़े लोग हैं तो बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े लोग तो सभी होते हैं ना। ओके, तो बड़े सेलिब्रिटी কত টাকা বলেছিল বিউটি খান একটা ভিডিওর জন্য? ने वीडियो के लिए नहीं बोली थी, मुझे तो भैया से बात हुआ था, দাদা থেকেই কথা হচ্ছিল, ওকে দিদি থেকে কাউর কথা হয় না, ওকে দাদার সাথেই কথা হয়, दादाई प्रमोशन दें। ओके, हाँ, तो भैया से जब बात हुआ था मुझे, तो भैया बोले थे, मैं बोला था कि पैसा कितना लगेगा, तो भैया बताए थे कि ऐसा कुछ भी प्राइस बताए जो हम बता नहीं सकते। तो भैया प्राइस बताए थे, फिर भी मैं राजी हो गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम ना जोश था, जुनून था, एक्साइटेड बहुत ही ज्यादा थे कि मुझे शूट करना ही तो करना है, चाहे लाख रुपया क्यों ना लगे, ठीक है, मेरा ड्रीम था। और हम जब एक्साइटेड रहते हैं तो बहुत अच्छा से ही करते हैं। तो फिर जब भैया मुझे बोला ना कि भाई তুই মেকআপ আর্টিস্ট, তো আমি মেকআপ করো, তুই ভালো করে করবি, আর বিউটিকে 3 মেকআপ আর্টিস্ট করেছে, ঠিক আছে, ভালো লাগলো না, তুই মেকআপ করবি। মানে তার তোমার আগে 3 জন আরো করেছে, দিদিকে করেছিল, তো করেছে দিদিকে। তো বলেছে কি, আমাকে বলেছে রাত্রিরে কি তুই ভালো মেকআপ করে দিবি, তো আমার নিজে পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্ট হয়ে যাবি। ওকে, ঠিক আছে। তো আমি তো मैं तो कहीं सीखा भी नहीं, তোমার কাছে ওটা প্রথমই সুযোগ ছিল যেখানে একটু অনেক ভালো যদি করে দাও তার মানে তুমি পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্ট হয়ে যাবে। तो मैं तो कहीं सीखा भी नहीं, मुझे डर भी था इस बात का कि जब हम कुछ खराब कर देंगे तो मैं होंगे नहीं उनका मेकअप आर्टिस्ट, और मुझे उनका मेकअप आर्टिस्ट बनना ही था।
ठीक है। যেহেতু তোমার ড্রিম ছিল ওটা। हाँ ड्रीम छिलो। तो फिर जब हम गए वहां पे करने के लिए तो दीदी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहला শুট उस दिन 2 শুট था, দুটোই শুট ছিল আমার। তো প্রথমে শুট করেছিলাম আমি একটা লেহেঙ্গা মধ্যে করেছিলাম দিদিকে রেড। ওকে। দিদি পছন্দ করেছিল দুটো ড্রেসটা। তো দিদিতেই খুব এক্সাইটেড, আমি এক্সাইটেড, দুজনে এক্সাইটেড ছিলাম শুট করার জন্য। তো ক্যামেরাম্যানই আমার ছিল, ক্যামেরাম্যানই এক্সাইটেড ছিল। তো প্রথমে যখন শুট করলাম লেহেঙ্গাটাই শুট করেছিলাম, তো প্রথমে মেকআপটাই দেখেই আমাকে বলে দিয়েছে কি তুই আমার ফিক্স হয়ে গেছি, তুই আসবি বাড়িতে, আমার থাকবি, মেকআপ করবি, আর যত ডাকবো তো তুই আসবি। ओके। तो हमें गए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये सुनकर कि दीदी ये बोल दी। तो फिर दूसरा जब शूट हुआ था तो भी बहुत अच्छा से किया था। तो जब शूट किए थे दोनों शूट बहुत अच्छा से था, और उस दिन तो मैं उनके साथ 12 घंटा तक मैं उनके साथ मस्ती किया, बात किया बहुत ही अच्छा से, बहुत मतलब लगा ही नहीं कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। मुझे मेरे लिए बहुत ही लकी दिन था वो, और मेरे लिए वो बेस्ट पर्सन है, दोनों जन बेस्ट पर्सन है। ওকে, তারপর থেকেই শুরু বিউটি খানের সাথে অ্যাজ এ মেকআপ আর্টিস্ট হ্যাঁ। পথ চলা, তাই তো? हाँ हाँ। তারপরে থেকে কত বড় বড় প্রজেক্টে তুমি কাজ করেছো তাও? এখানে তো বিউটি দিয়ে কাজ করেছি, আর মিঠি অফিসিয়াল আছে। মিঠি? হ্যাঁ মিঠি অফিসিয়াল আছে, Okay. ওকে মেকআপ করেছিলাম আমি। আর আছে মিঠির সাথে কিভাবে পরিচয়? মিঠির সাথে, মিঠি তো আমার বাড়ির কাছেই থাকে। হ্যাঁ Okay. তো মিঠি বাড়ির কাছেই থাকে, ওই যাচ্ছিল স্কুটিতে যাচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছিল আইস আইস চেক আপ করাতে যাচ্ছিল। তো আমি দেখেছিলাম, আমার সাথে একটা বন্ধু ছিল, ঠিক আছে। তো আমি বলেছি কি দেখ মিঠি যাচ্ছে, আমাকে একটা ফটো নিব, একটা ফটো নিব, একটা ভিডিও করব। আমি গিয়েছি ওর সাথে, একটা ফটো ভিডিও নিয়েছি যেহেতু ভালো করে। মিঠি অ্যাজ এ তখন হ্যাঁ ভালো একটা বড় মাপের ইনফ্লুয়েন্সার এখনই আছে আর ওখানে ছিলে, ঠিক আছে। তো আমি গিয়েছিলাম, तो दीदी को जब मैंने देखा दूर से ना, तो मैं अपना दोस्त को बोला कि मुझे उनके साथ वीडियो भी बनाना है, शूट भी करना है, रील्स भी बनाना है। तो मैं गया, मुझे तो डर भी लग रहा था कि वो क्या बोलेगी क्या नहीं, क्योंकि एक लड़का जब लड़की से मिलता है ना तो इस माहौल में डर लगता है कि लोग क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। लड़की लड़की मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब मैं गया था, दीदी अच्छा से मेरे साथ वीडियो बना लिया था, और जब मेरे प्रोफाइल दीदी चेक किया था तो वो खुद से मुझे मैसेज भी किया था कि तुम ब्यूटी खान का मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मुझे भी अपना नंबर दो, मेरा भी घर पे शादी है। उस टाइम ना उनका भाई का शादी था, मतलब दादा का शादी ছিল। তো আমি, আমাকে ইনভাইটটা করেছিল আর মেকআপটা বুক করেছিল আমার, কি আমার বৌদিকে তুই মেকআপ করবি, তার নাম্বারটা দে আমাকে, আমি নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি। তো আমাকে ডাকলে, জানুয়ারিতে শাদি ছিল, বিয়ে ছিল, তো আমাকে ডাকলে আমি গিয়েছিলাম মেকআপ করতে দিদিকে। तो ওখানেই शुरू হয়েছিল। तो फिर उसके बाद जब मेकअप करने गए थे वहां पे, तो पहला दिन दीदी बहुत ही अच्छा से व्यवहार भी की थी, मेरे साथ बात भी की थी, और अभी भी करती है, अभी भी बातचीत करती है, सब कुछ करती है। और हर एक सेलिब्रिटी, जब सेलिब्रिटी तो सबको ही होता है, तो उनका भी तो काम है ना मेकअप, मतलब कोई भी लाइन में जब वो कुछ कर रही है तो बिजी होना, जैसे वो बिजी तो हम भी बिजी रहते हैं। तो फिर वही बात है, तो वो अपने लाइन में बिजी है तो हम अपने लाइन में बिजी है, तो इसलिए टाइम दे नहीं पाते। लेकिन दीदी भी बहुत अच्छी है, वो बातचीत करती है। ওকে। আচ্ছা, যখন তুমি শুরু করেছিলে তখন ভেবেছিলে কোনো সময় এত বড় বড় নামদের সাথে না। কাজ করতে পারবে, এরকম ভাবে কাজ এগোবে? তখন কি ভেবে শুরু করেছিলে যে অ্যাজ এ নরমাল ভাবে মডেল, নর্মাল মডেলটাই শুট করব আমি, আমি কাজ করব, মেকআপটাই কাজ করব, लेकिन আমি জানতাম না এত বড় বড় লোকের সাথে আমার পরিচয় হবে, আমি কাজ করব। আমি তখন ভেবেছিলে কি যে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে এদের সাথেই কাজ করবে? ভালো করব তো যাব, ওকে। এটাই মনে ছিল। তো দেখি কি হচ্ছে আগে। ওকে, টলিউডে কাজ করার ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ অনেক আছে, কার সাথে কাজ করার ইচ্ছা আছে? বড় বড় সেলিব্রিটি। অ্যাজ এ দেব? হ্যাঁ দেব, বেঙ্গলি তো দেব আছে। শুধু দেবদা? দেবদা বেঙ্গলি? আছে, বেঙ্গলিতে আমি তো জানি না, না ওকে। আমি হিন্দিতেই জানি। ওকে, অ্যাজ এ ড্রিম কার সাথে কাজ করার ইচ্ছা আছে? মাধুরী দীক্ষিত। কেন মাধুরী দীক্ষিত কেন? এখন তো অনেক বড় বড় সুপারস্টাররা আছে, আরো ভালো ভালো অ্যাক্ট্রেসরা আছে। जब पहले से जो ड्रीम रहता है ना उसको पूरा पहले किया जाता है, ওকে। तो पहले से ड्रीम माधुरी दीक्षित ही था। तो फिर मैं सोचा कि जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, वो एक्टर है, वो मेरे साथ वो मेकअप करेगी कि नहीं करेगी, मैं उनका मेकअप कब करूंगा कब नहीं, क्योंकि जो दोनों दीदी के बारे में बताया ना, वो दीदी बहुत बड़ी फैन है, तो उनके वजह से मैं उनके साथ मेकअप करना चाहता था। तो फिर मैं सोचा जब ऐसा कुछ अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन गया, उस लाइन में पहुंच गया, तो जरूर मैं उनके साथ एक बात फोटो तो क्लिक करवाऊंगा ही, मेकअप करूँ ना करूँ, शूट करूँ ना करूँ, लेकिन एक तो फोटो लूंगा जरूर।
ওকে। আচ্ছা, তোমার এমটা কি, মানে তুমি কোথায় তুমি যেতে চাইছো, যে আরো এই পজিশনে আমাকে, ধরো তুমি এখন এখানে রয়েছো, আরো এখানে যেতে হবে, এমন কি তোমার টার্গেট আছে যে তুমি ওখানে যেতে চাইছো? तो अभी तो कुछ सोचे ही नहीं है कि बस जहां मुझे लेकर चले जाए वहां ही चले जाएंगे अब बस। ওকে। আচ্ছা, অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার অনেক কিছু দায়িত্ব থাকে সমাজের ওপর, কারণ তোমরা যেটা করছো সে তোমাদের দেখে আরো 10 জন সেই জিনিসটা করছে বা শিখছে। তা আমার স্টুডেন্ট আছে তো, আমি মেকআপ শিখাই তো বাড়িতে। ওকে, ওই বিষয়টা একটু আমাদের যদি বলো। तो एक्चुअली तो हम तो मेकअप आर्टिस्ट है जब, तो मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारी है, तो वो लोग भी बहुत अच्छा काम भी करती है। मैं क्लास भी देता हूँ तो बहुत ध्यान लगा कर वो लोग क्लास भी কোনো करती है। ইনস্টিটিউট কি আলাদা জায়গায় খোলা নাকি না বাড়িতে? বাড়িতেই করি, বাড়িতেই করি, বাড়িতেই করেছিলাম এখনই বা বাড়িতেই করি। করবো মেকআপ আর্টিস্ট, একটা বড় করে পার্লার করব। ওকে, বাড়ির ওখানেই খোলার ইচ্ছা? বাড়ি ওখানে করব না, দূরে করব। ওকে, কাকিনাড়ে করব না। ওকে। অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার শুধু ভিডিও বানিয়ে গেলে তো আর সংসার চলবে না, না। নিজের পেটও চলবে না। তা তোমাদের ইনকাম সোর্স গুলো কি কি থাকে, বা কি কিভাবে তোমরা ইনকাম সোর্স আনো? इनकम तो कोई बताता है नहीं किसी को भी, तो लेकिन जब इतना होता है कि मेरा घर चल जाता है। ओके, कहाँ से आता है ज्यादा? जैसे मेकअप का लाइन में है तो मेकअप से ही आता है ना, ओके, मेकअप से ही आता है अभी फिलहाल के लिए। और वीडियो जो इसे प्रमोशन का कोई देते हैं मुझे, बड़े बड़े मतलब कोई भोजपुरी एक्टर भी मुझे देते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसका प्रमोशन करते हैं। ওকে। এটা ইউটিউব থেকে বেশি আসে নাকি ইনস্টাগ্রাম? यूट्यूब। ইউটিউব থেকে বেশি টাকা আছে ব্র্যান্ডের থেকে? यूट्यूब तो ब्रांड আছে তো यूट्यूब থেকেই আসবে তো। ওকে, ভোজপুরি গানের কি প্রমোশনের কথা বলছি, ওগুলো কি কি तो भोजपुरी गाना जैसे मतलब कोई किसी का सॉन्ग रिलीज हुआ, नया सॉन्ग रिलीज होता है ना, तो वो लोग अपने सॉन्ग पे बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए कि इतने पैसा मिलेगा, इतना प्रमोशन इतना प्रमोशन पे आपका इतना पैसा मिलेगा, आपको ये सॉन्ग पे वीडियो बनाना है, आप पोस्ट करोगे ना तो पैसा मिलेगा, तो वो इसको बोलते हैं। ওকে, তাও কত টাকা আসে ওখান থেকে? जैसे एक वीडियो पे जैसे अच्छा खासा प्रोफाइल रहता है ना जिसका, तो उसका 10,000 तक भी आता है। ওকে, তোমার নিজের 1,27,000 ফলোয়ার্স? हाँ, तो एक वीडियो पे मैं 5,000 किया था। ওকে, ওকে। আচ্ছা, এই যে যে টাকাগুলো আসছে, দেখা গেলো ইনফ্লুয়েন্সারদের কি হয়, এখন ম্যাক্সিমাম ইউটিউবাররা তাই করছে যে ওখান থেকে টাকা আসছে, সেই টাকাটা অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করে রাখছে। ঠিক আছে, যেরকম কেউ ধরো বিরিয়ানির দোকান খুলে নিয়েছে, কেউ অন্যান্য ব্যবসাতে ইনভেস্ট করে রয়েছে। তোমারও কি এরকম ধরনের ভবিষ্যতে কোনো টার্গেট? হ্যাঁ, নিজের বিজনেস। হ্যাঁ, এই তো সোশ্যাল মিডিয়া তো কাজ করছি তো কিছু হবে না। হ্যাঁ, নিজের কারণ বিজনেস, এক সময় না এক সময় তো তোমারও ডাউনফল আসবে, তখন তো তোমাকেও স্ট্রাগল করতে হবে। এক সময় তো আইডিটাই বন্ধ হয়ে যাবে। একদম। তো নিজের বিজনেস খুব ভালো, সেটাই, সেই হিসাবে তুমি কি ভেবে রেখেছো? মেকআপ আর্টিস্ট, ওই মেকআপ পার্লারটা ওপেনিং করবো, বড় করে পার্লারটা ওপেনিং করবো, ওটাই বিজনেস করব। ওকে। আর আলাদা করে একটা বিজনেস চাই, তো কিছু ক্যাফে ওপে ওপেনিং করব, না তো রেস্টুরেন্ট ওপেনিং করব বিজনেস জন্য। ওকে, এটাই আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এতদিনের যে এত স্ট্রাগল, এত কিছু, যখন শুরু করেছিলে তখন বাড়ির সাপোর্ট কেমন ছিল, আর এখন বাড়ির সাপোর্ট কেমন, এটা একটু বলো। প্রথমে বাড়ির সাপোর্ট ছিল না, এখনই খুব ভালো। ওকে, খুব মানে প্রথমে সাপোর্ট কেমন, আছে। প্রথমে কেমন করতে পারি যে বাবা রাগ করছিল কি এটা কি কাজ করছি, ছেলে মানুষ আছে, কি কাজ করছো, মেকআপ মেহেন্দি করো না, ভালো করে কাজ করো, কিছু ভালো করে কাজ ধরো। এটা নরমালি থাকে প্রতিটা ফ্যামিলি, যে পড়াশোনা করার পর চাকরি বাকরি করো। হ্যাঁ, এটাই ঠিক আছে কি মেকআপ করো না, ভালো না, মেকআপ মেয়েদের ভালো আছে, ছেলে ভালো করে না, করো না তুমি, ঠিক আছে, বাইরে মানুষ কি বলবে তোমাকে কি। तो फिर मैं पापा को समझाया कि पापा ऐसे बाहर जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, जब ये पैसा आएगा ना तो कोई किसी को देता नहीं है, पैसा जब आएगा ना तो मेरे पास ही रहेगा, किसी को ना हम देंगे ना वो देगा मुझे। तो जब पापा बोले ठीक है, जब तुमको ये अच्छा लग रहा है तो करो, तो पहले तो सपोर्ट नहीं था, पहले पापा बहुत डांटते भी थे, बहुत गुस्सा भी करते थे, पहले कहीं जाने भी नहीं देते थे मुझे, लेकिन अब तो बहुत सब जगह घूमते भी है, बहुत इंजॉय भी करते हैं। बस पापा का कहना है, पापा मम्मी का कहना यही है कि कहीं भी जाओ मुझे एक बार बता कर जाओ। ओके, कि कहीं भी जाओ बस बता दो कि मैं चिंता नहीं करेंगे। तो फिर कहीं भी जाते थे भैया पापा को मम्मी को सबको बता के ही जाते थे, मेरे घर पे पापा मम्मी भैया बहन सबको ये, तो सबको बता कर ही जाते थे, कोई चिंता नहीं करते थे।
तो फिर पापा बहुत डांटने के बावजूद भी मैं ये सब काम किया, तो फिर सपोर्ट किया। तो मुझे अभी अच्छा लगता है कि हाँ चलो पापा सपोर्ट करते हैं मेरे काम पे। तो क्योंकि पैसा है ना, पैसा बोलता है, ये तो सुने हो ना आप। देख बस यही बात है कि पैसा बोलता है। तो पैसा बहुत अच्छा से पापा को बुलवा दिया था। तो बस यही बात है, जब पापा को पैसा बुलवा दिया था तो मैं भी बोल दिया था। ওকে, প্রথম কত টাকা গিয়ে বাবার সামনে রেখেছিলে যে বাবা অবাক হয়ে গেছিল যে এত টাকা কিভাবে नहीं, কামাচ্ছি? कभी तो पापा के सामने पैसा नहीं दिखाया, ওকে, ठीक है। लेकिन जब पापा एक साथ बैठे थे रूम में, तो बस जब बोल दिया था कि पापा इतना पैसा आता है एक काम पे, तो पापा जान भी गए थे, क्योंकि मम्मी बता दी थी पापा को कि इतना पैसा होता है इस लाइन पे, तो अभी अच्छा है। तो पहले सपोर्ट नहीं करते थे पापा, लेकिन अब बहुत सपोर्ट करते, बहुत बोलते कि ठीक है तुम और अच्छा से ভালো করে কাজ করি, ভালো করে আগে যাবি, এটাই আছে। আরো ভালো করে কর। হ্যাঁ, আর এখন ভালো করে কর। বাবাই উৎসাহিত করে, তাই না? হ্যাঁ, খুব। ওকে, আচ্ছা, অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার তো তুমি একজন ইনফ্লুয়েন্সার, হুম। তোমার মতন আরো অনেক ইনফ্লুয়েন্সাররা আছে যারা তোমার মতনই ভিডিও বানাচ্ছে। এমন কি তোমার মধ্যে এক্সট্রা আছে যে জিনিসটা তোমাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে, মানে दूसरे से अलग करता है तुमको? ऐसा क्या है तुम्हारे में? ऐसे तो बहुत कोई है, मतलब जैसे अलादा करता है, मतलब अगर दूसरा भी कोई काम कर रहा है ना करता ऐसे है। फील्ड में, तो वो भी एक वीडियो वही बनाता है। मेकअप के लिए लाइन पे ही सब कोई करते हैं। हाँ, हाँ, कि तो ये मेकअप जब तुम्हारे में हम ऐसा कर क्या रहे हैं ना, डिफरेंट है जो तुम दूसरों से अलग दिखोगे? बोलते हैं ना कि जब इंसान कोई अच्छा मौका में, मतलब मुकाम में पहुंचता है, वो अच्छा कर रहा है, तो उसको नीचा ही लेकर आएंगे ना। तो बस यही बात है, जब कोई अच्छा काम करने के लिए जब भी हम कुछ पहुंचते हैं आगे कि हाँ ये मेकअप भी अच्छा कर रहे हैं, इतने दूर तक जा रहे हैं, तो लोग बहुत कुछ पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी का बात। ओके, आई एम द बेस्ट। हाँ। এইটাই মনে खुद হয়। का लाइफ खुद से जियो, एंजॉय करो और खुद का ऊपर फोकस करो, बस। ওকে, আচ্ছা, ফিউচারে তোমার কি চিন্তা ভাবনা, ফিউচারে কিভাবে আগাবে? अभी तो फ्यूचर बहुत ही बड़ा है, तो फ्यूचर के लिए तो कुछ सोचा नहीं है कि फ्यूचर में आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी तो 2025 शुरू ही हुआ है। तो अभी शुरू का ही दिन मेरा तबीयत भी खराब था, तो थोड़ा बहुत भी ना 31 को खराब था, 1 तारीख को बहुत अच्छा था। मैं सुबह सुबह मंदिर गया, पूजा वूजा किया, मैं भगवान से प्रे भी किया कि ये दिन अच्छा जाए मेरा 2025, क्योंकि 2024 बहुत ही खराब गया था, बहुत खराब। ओके, बहुत कुछ हुआ था, बहुत खराब गया था। तो 2025 मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, और अच्छा से खुद से एंजॉय करना चाहता हूँ 2025। আচ্ছা, ফ্যামিলির ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম, তোমার ফিউচারের ব্যাপারে তুমি কি করবে না করবে, ইনকাম সোর্স গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি হলো ফ্রেন্ড সার্কেল। বন্ধুরা অনেক কিছু হয় হ্যাঁ। লাইফে, তা যখন শুরু করেছিলে তখন বন্ধুদের সাপোর্ট কেমন ছিল? প্রথম প্রথম দিয়েই ভালো ছিল, খুব ভালো। और मेरे दोस्त लोग बहुत ही अच्छा था, जो सपोर्ट किया था मेरे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। और जो मेरा शूट करता है वो 2 जन ही था, तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसके Okay. वजह से। तो वो लोग ही मेरा शूट करता था, और वो लोग दोनों ही बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये हमेशा बोलता था ना कि किसी का बात मत सुनो, किसी का ध्यान मत दो, किसी का बात मत सुनो, आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो करना है आप करो, मैं तो शूट कर दूंगा आपका। आपको जहां जाना है मुझे कॉल मैसेज कर देना कहीं से भी, क्योंकि उन लोगों के पास कभी फोन नहीं था। तो वो लोग इतना ही अच्छा था कि मेरे पास बार बार आता भी था, मुझसे मिलता भी था, और बहुत सपोर्ट भी करता था। तो वो लोग शूट भी कर देता था मेरा। तो वो शूट करने के প্রথমে बाद কি দিয়ে শুট হতো? ফোন দিয়ে শুট করেছিলাম, নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড। ওকে, প্রথম দিয়ে আইফোন ছিল না আমার কাছে, এখনই আইফোন আছে। একদম। হ্যাঁ, তো প্রথম দিয়ে আইফোন ছিল না, অ্যান্ড্রয়েড ছিল। তো আমাকে অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে শুট করেছিল, তো एंड्रॉइड ही भालो। ओके, तो एंड्रॉइड बहुत ही अच्छा था, तो एंड्रॉइड से ही शूट करता था मेरा, तो मुझे अच्छा लगता था, उसका शूट ही अच्छा लगता था मुझे। तो फिर वो जब शूट करता था, फिर हम उस टाइम रेगुलर हम वीडियो पोस्ट करते थे डांस का, और डांस भी मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे डांस के लिए बहुत कोई मुझे पहचानता है कि गौतम डांस बहुत अच्छा करता है, उसका डांस भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं कुछ भी चीज कहीं भी नहीं सीखा खुद से, डांसও তুমি শেখো? नहीं, डांस भी नहीं सीखा। और एक्चुअली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेहंदी भी मुझे आता है लगाने, तो मेहंदी भी मैं कहीं नहीं सीखा। ओके, डांस, मेहंदी, यहाँ तक कुकिंग करना भी। ওকে, ভালো রান্নাও করো তার মানে? রান্নাটাই ভালো করি, রান্নাই আমি জানি। तो खाना बनाने में मुझे बहुत अच्छा से आता है, तो मेरे पापा को खाना भी बहुत अच्छा लगता है,
कि मेरे हाथ का खाना पापा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरे मामा को भी। ओके मेरे मामा घर जब भी जाऊंगा ना, तो मामा बोलते हैं कि तुम अपने हाथ का ही खाना बनाओ मुझे। तो फिर जब दोस्त लोग वीडियो शूट करता था, सब दोस्त तो एक किस्म का नहीं होता है, 10 लोग 10 किस्म का होता है। तो जिसमें से बहुत दोस्तों सपोर्ट भी किया मुझे, बहुत दोस्त लोग सपोर्ट करने भी आया, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोला। ओके तो फिर मैं उसका ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों का काम होता है ये बोलना। तो फिर दोस्त लोग था, फिर 2 जन वो शूट करता था। तो फिर शूट वूट करने की और कहीं भी जाता था मेरे साथ ही जाता था, हम भी उसके साथ ही जाते थे। मुझे उसके साथ अच्छा लगता था, क्योंकि उसको हम दोस्त नहीं, अपने भाई की तरह मानते थे। ओके छोटा भाई की तरह, मतलब छोटा भाई से बढ़कर भी उसको मानते थे, बहुत ही मानते थे, छोटा भाई की तरह मानते थे। बस होता है, घर का प्रॉब्लम होता है, किसी का घर सपोर्ट नहीं करते हैं कि इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। तो मेरा उसका कुछ मन नहीं था कि जब नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मत ही रहो भाई। फिर भी वो मेरे साथ रहता था, हम भी रहते थे, बात बात करते थे बहुत अच्छा से, बहुत दूर तक भी गए। तो फिर उसके बाद जब शूट वूट कर दिया मेरा, जब वीडियो पोस्ट करने लगा, उसके बाद जब एंड्रॉइड से ही शूट करते थे हम लोग, एंड्रॉइड से शूट किए। और उसके बाद जब वीडियो पोस्ट करते थे, लाइक व्यूज बहुत अच्छा जाता था मेरा। तो जब लाइक व्यूज अच्छा जाता है ना, तो मन करता था कि हाँ चलो लाइक व्यूज ভালো যাচ্ছে, তো চলো আর ভিডিও করছি, আরো ভিডিও করি হ্যাঁ আরো ভিডিও আরো করি ভিডিও করি। তো আর ভালো ভিডিও যাবে, ভাইরাল হবে, মিলিয়ন মিলিয়ন আসবে। আমি সোচি মিলিয়ন ড্রিম ছিল আমার, ওকে মিলিয়ন আসবে। তো ঠিক আছে আমি করছি, বলেছিল আমার বন্ধু কি ঠিক আছে কর, ভালো করে ভালো ভিডিও করবি তো ভালোই যাবে। तो फिर मैं करता भी था बहुत अच्छा से शूट। तो मुझे वो बोला ना कि भाई भैया आप एक काम करो ना, वो मुझे भैया करके बोलता था, और मैं कभी उसको बाबू या फिर कभी उसका नाम लेकर बोलता था, बहुत प्यार से उनको, प्यार से ही बोलता था, आप करके ही बोलते थे, बहुत प्यार से बोलते थे। ओके तो फिर उसको वो बोला ना कि आप एक काम करो, आईफोन ले लो, आईफोन से शूट अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा देता है, और बहुत अच्छा से शूट भी होता है। तो मैं मेकअप करके जब आया था, पैसा था मेरे पास, तो हम बोले चलो ठीक है अभी खरीदने चलते हैं। कैश तो मैं उसी दिन संग संग उसके साथ ही गया। हमें तुमको जो कलर का पसंद है, तुम जो कलर चाहिए तुम्हें वो बताओ, मैं वो संग संग ले लूंगा। तो वो 13 प्रो मैक्स मुझे पसंद था, कलर वो बोला, तो मैं संग संग कैश लेकर दे दिया था। वो बैरकपुर से ही लिया था ओके आईफोन। तो फिर मैं उसको लेकर ही आया था, आईफोन ले लिया था। फिर उसके बाद से आईफोन से शूट करता था। ওকে और ब्यूटी दी से भी जब मिला था ना, तो एंड्रॉइड ही था मेरे पास, आईफोन नहीं था। ওকে आईफोन तो তারপর अभी বিউটি দি है। কোনো সময় বলেনি ভাই তুই এত তাড়াতাড়ি আইফোন নিয়ে নিলি এত টাকা কামাচ্ছিস আর जब দিদির সাথে প্রথম জব শুট ছিল, আমার প্রথম প্রজেক্ট ছিল, তো আমি গিয়েছিলাম, তো দিদি দেখেছি আমার কাছে এন্ড্রয়েড আছে, ঠিক আছে। তো দিদি শুট হয়ে গেছে 2 দিন 3 দিন পর, দিদি মতলব মুসলিম, তো হুম, তো ঈদ ছিল, ঈদ, হ্যাঁ তো রোজা রমজান ছিল। তো হুম, রোজাতে আমাকে ইফতার ডেকেছিল বাড়িতে, কি ইফতার করে আসবি। ওকে তো আমি গিয়েছি ইফতার করে, তাহলে তাহলে দেখেছে কি আমার হাতে আইফোন আছে। 3 দিন পরে প্রথম শুটের 3 দিন পরেই তোমার হাতে नहीं আইফোন 3 दिन না, 1 সপ্তাহ 1 সপ্তাহ পরে আইফোন তো আইফোন। অবাক হয়ে যায়নি দেখে হ্যাঁ কিভাবে বলেছে হঠাৎ কি, করে এত টাকা তোর তো আমি বলেছি আমার বন্ধু ইচ্ছা ছিল, আমি নিয়েছি, আমি শুট করব। ওকে এবার ঠিক আছে, ভালো শুট হয় আইফোন দিয়ে। সেই বন্ধুরা কি এখন অবধি আছে হ্যাঁ আছে। এখনো সেই ভিডিও করছে এখনো না না করছে না, আছে, ওকে বাট ভিডিও এখন করছে ভিডিও না সে করছে। আমি নিজেই করছি না ভিডিও, আমার শরীর খারাপ আছে। ওকে আচ্ছা তুমি যেখান দিয়ে শুরু করেছিলে একটা ধরো আহ, মানে এমন একটা এরিয়া যেখানে এইসব কাজ কেউ করে না এরকম ভিডিও কেউ বানায় না বা ওরকম চর্চা নেই ইনফ্লুয়েন্সার কি হয় কি ইনস্টাগ্রামে কিভাবে ভিডিও ছাড়ে ইউটিউবে কি ছাড়ে ওইসব নিয়ে আলোচনা নেই তা এখন তুমি যেখানে আছো কেমন মনে হয় যে এখন ঠিক वहां के माहौल में तो ये सब कोई पसंद भी नहीं करता था पहले, कि ये क्या रास्ता में डांस करता है, वीडियो बनाता है, ये सब क्यों करता है, वहां का लोग को पसंद नहीं था। तो लेकिन जब अब बनाते हैं ना, तो अब सब कोई पसंद करते हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया में फेमस भी हो गए ना। अब वहां पे उतरकर मेरे नाम लेने से मेरे घर पहुंचा देते लोग को। पहले तो क्या होता था ना, पापा के नाम से हम जानते थे, लेकिन अब मेरे नाम से पापा जानते हैं। पापा को सब जानते हैं कि हाँ ये गौतम का पापा है। पहले तो वो जानते थे ना कि पापा, मतलब मेरे पापा का नाम मनोज है, कि मनोज का बेटा गौतम है, लेकिन अब पापा के नाम से मुझे जानते नहीं है, मेरे नाम से पापा को जानते हैं। নিজেরও একটা हाँ, গর্ববোধ तो হয় না पापा भी को भी गर्व होता है ना खुद से अंदर, कि चलो पहले तो मेरे नाम से बेटा को जानते थे, लेकिन बेटा का नाम सब हम मुझे जानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था ना, पापा एक दोस्त के घर पे गए थे, मतलब दोस्त की दुकान पे गए थे। पापा का एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, और दुकाने গেছিল পাপা। তো ওখানে না আমার একটা ফ্যান এসেছিল, পাপাকে পাপাকে না
দূর থেকে দেখে নিয়েছে কি আমার পাপা আছে, বাবা আছে। ঠিক আছে, গিয়েছে কি বলেছে কি তুমি গৌতমের বাবা আছো? তো बाबा बोलছে कि ना আমি गौतम बाबा नहीं। ओके मिथ्या কথা বলেছে पापा। तो फिर पापा जब बोले ना कि नहीं मैं पापा उसका नहीं हूँ, तो फिर बोलो नहीं मैं उनका वीडियो में देखा हूँ, उनका फोटो में देखा हूँ, आप पापा हो, उनका पापा हो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। तो फिर पापा पलट दिए, नहीं नहीं मैं नए हूँ, सच में नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानते, मैं नहीं, आप जानते हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर पापा संग संग मुझे कॉल किए कि गौतम एक एक बात है, तुम बात कर लो किसी से। तो उस दिन पापा को ज्यादा गर्व हुआ था मेरे ऊपर कि हाँ कोई दूर से आया तुमसे मिलने के लिए, मुझे पहचान कर बोला, वो ज्यादा अच्छा लगा पापा को। ओके মানে এখন কি तो রাস্তাঘাটে फिर उस दिन पापा घर आकर ना बहुत खुश हो गए थे, और उस दिन रान्ना भी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब खाना भी बहुत अच्छा बनाए थे पापा। ওকে আচ্ছা এখন কি রাস্তাঘাটে বেরোলে কেউ সেলফি ফেলফি আবদার अरे করে? बाबा बहुत बहुत परेशान करते हैं लोग, मतलब परेशान क्या करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई मिलता है, फोटो लेता है, वीडियो बनाता है, शूट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिसको भी वीडियो शूट करना भी है, बोलता भी है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ आओ, मैं सबके साथ वीडियो बनाऊंगा, शूट करूंगा, मेरे अंदर कुछ भी एटीट्यूड घमंड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि छोटे से उठकर ही बड़े लोग बनते हैं, तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट बड़े बन गए। तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। ওকে सही बात है। तो वहां पे बहुत कोई बोलता भी है कि मैं मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो हम बोले ठीक है जिसको भी बनाना है आ जाओ। और हाँ, जब भी बाहर निकलते दोस्तों को लेकर ही निकलते, अकेले तो कहीं नहीं जाते। दो दोस्त हैं अभी साथ में, दो दोस्त के साथ ही जाते हैं। एक का नाम मनीष है, एक का नाम अदनान है, तो उसके साथ ही भी जाते हैं। तो वो लोग को लेकर ही जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी गए दूर से ही बोलता है कि हाँ गौतम जा रहा है, गौतम जा रहा है। वो लोग भी बोलते हैं कि भैया आपका नाम ले रहा है, हमें छोड़ो नाम लेने दो, अभी इतना भैया तुम्हारा फेमस हो रहा है ना इसलिए नाम। ভালো লাগে তোমারও हाँ, তখন? तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि गर्व भी होता है अंदर से कि मैं सच में मेरे नाम ले रहा है कोई, तो मुझे भी अच्छा लगता है। এত কিছু হলো সব ঠিক আছে কিন্তু তোমার মধ্যেও তো কোনো না কোনো জায়গায় স্পিরিচুয়াল ভাব আছে। हम्म ভগবানে তুমিও কোনো জায়গায় বিশ্বাস করো মনে হয়। हम्म ভগবানের উপর তোমার কতটা বিশ্বাস? भगवान के ऊपर तो विश्वास तो है ही, सबको रहता है। लेकिन एक बार क्या हुआ था ना मेरे साथ, मैं भगवान को कुछ प्रे किया था, मतलब मांगा था, वो पूरा नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम से मैं टूट गया था। तो मैं पहले बहुत पूजा पाठ करता था, हर एक पूजा पाठ, मतलब नवरात्रि हुआ या फिर जन्माष्टमी हुआ या सोमवारी हुआ, शिवरात्रि हुआ, बहुत कुछ करता था। लेकिन जब मैं टूटा ना उस टाइम से, तो मैं सब कुछ छोड़ दिया। এখন আর কিছু করো না? ना কিছু করি না। এখন শুধু নর্মাল যাও? हाँ नॉर्मल वीडियो करी, मेकअप करी, पूजा पाठ करी, तो सिर्फ अगरबत्ती दिखा देते हैं बस। ওকে কোন ভগবানকে সবচেয়ে বেশি মানো? शिव जी, शंकर। ওকে শিব ঠাকুরকে। ওকে আচ্ছা প্রতিটা জিনিসের ভালো জিনিস থাকলে খারাপ জিনিসও থাকে। ভগবানে যেরকম বিশ্বাস করো সেরকম কি ভূত প্রেত তেনাতেও বিশ্বাস? না না আমি বিশ্বাস করি না, আমি তো দেখতে চাই কি কিরকম হয়। ভূত কিরকম হয় দেখতে চাও? আমি বিশ্বাস করি না, আমি ভয় খাই না। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। আর আমরা এবার একটা র্যাপিড ফায়ার খেলবো, যেখানে 5টা কোয়েশ্চেন থাকবে, তোমাকে আমি 5টা কোয়েশ্চেন করবো, তোমাকে ফটাফট করে উত্তর দিতে হবে। তো শুরু করছি আমাদের র্যাপিড ফায়ার আজকের মতো। প্রথমটা থাকবে হলো টিকটক নাকি ইনস্টা রিলস? টিকটক। ওকে মাধুরী দীক্ষিত নাকি বিউটি খান? বিউটি গান। ওকে যেহেতু মাধুরী দীক্ষিত কাছে নেই হচ্ছে। ওকে ড্যান্স নাকি মেকআপ? মেকআপ। ওকে ফ্রেন্ডস নাকি ফ্যামিলি? ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন নাকি বিরিয়ানি? বিরিয়ানি সব থেকে বেস্ট। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এতক্ষণ টাইম দেওয়ার জন্য গৌতম তোমাকে। তোমার কেমন লাগলো আমাদের সাথে কথা বলে? খুব ভালো, খুব সত্যি। আর তুমি খুব ভালো আছো, তার জন্যই তো ভালো এসেছি আমি এখানে। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে তুমি যদি কিছু বলতে চাও? तो जल्दी से आप लोग भैया को सपोर्ट करो, भैया को बहुत सारा प्यार दो, और भैया के অনেক অনেক খুব ভালোবাসা দাও তাড়াতাড়ি। আর ভैया চ্যানেলে सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठक ठक कर कमेंट करो जैसे मुझे करते हो। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে পডকাস্ট দেওয়ার জন্য, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা তোমার সাথে আরো একবার পডকাস্ট করার সুযোগ পাবো। ওকে তো বন্ধুরা আজকের মতন ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট পডকাস্টে। ততক্ষণের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও। এবং তোমরা অনেকেই আমাদের ভিডিও দেখছো বাট সাবস্ক্রাইব করছো না, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আরো তোমাদের জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করে আরো ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসছি।
ধন্যবাদ।